ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ میں جاری بربریت ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں پاکستان نے دنیا کے سب سے بڑے فورم پر نہ صرف غزہ کے حق میں بھرپور آواز بلند کی بلکہ بھارت کو بھی کھلا پیغام دیا۔ لندن میں پاکستانی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نیو یارک اور واشنگٹن کا حالیہ دورہ نہایت کامیاب اور مفید رہا، جہاں پاکستان نے عالمی سطح پر اپنے موقف کو مضبوط انداز میں پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی عمارت میں غزہ کی صورتحال پر ہونے والا اجلاس ایک بڑی پیش رفت ہے، جس کی صدارت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی اور پاکستان کو خصوصی طور پر مدعو کیا۔ قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن، مصر سمیت کئی اہم ممالک نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے کہا اجلاس میں حوصلہ افزا بات چیت ہوئی اور انہیں یقین ہے کہ اس کے مثبت نتائج بہت جلد سامنے آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زور دیا کہ غزہ میں 2023 سے جاری ظلم و ستم اب بند ہونا چاہیے۔ فوری جنگ بندی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں پر ہونے والی بربریت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ وزیر اعظم نے واضح کیا مسئلہ کشمیر پر بھی جنرل اسمبلی کے فورم پر پاکستان نے مؤثر آواز اٹھائی۔ ان کا کہنا تھا بھارت کے خلاف مارکہ حق میں پاکستان نے شاندار کامیابی حاصل کی اور افواج پاکستان نے دشمن کو ایسا سبق سکھایا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی، جبکہ جنگ کے دوران پوری قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں پاک فضائیہ نے پیشہ ورانہ مہارتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا پانی کے مسئلے کو اقوام متحدہ میں بھرپور انداز میں اٹھایا گیا۔ پاکستان ہر فورم پر اپنی قومی سلامتی، عوامی مفاد اور مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرتا رہے گا۔ اور بھارتی بورڈ کی ایما پر بھارتی ٹیم کی ہٹ درمی اب بھی برقرار ہے اور بھارتی ٹیم نے محسن رضا نقوی سے ٹرافی لینے سے صاف انکار کر دیا۔ پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کے بعد بھارتی ٹیم ایشیا کپ جیتنے کے باوجود ہٹ درمی پر برقرار رہی۔ بھارتی ٹیم نے ایشین کرکٹ کونسل کے صدر سید محسن رضا نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کیا۔ بھارتی ٹیم کی ہٹ درمی کی وجہ سے دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں فائنل تقریب تاخیر کا شکار ہوئی، تاہم صدر اے سی سی محسن نقوی بھی اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے۔ بھارتی ٹیم تقریب میں کسی اور سے بھی ٹرافی وصول نہ کر سکی۔ بی سی سی آئی نے اے سی سی کو باضابطہ طور پر ٹرافی نہ لینے کے بارے میں آگاہ کیا اور ٹرافی میدان سے واپس منگوا لی گئی۔ تقریب کے میزبان سائمن نے بتایا کہ انہیں ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے بتایا گیا کہ بھارتی ٹیم آج ٹرافی وصول نہیں کرے گی۔ خیال رہے کہ ایشیا کپ کے دوران بھارتی ٹیم نے اسپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ تو پاکستانی ٹیم سے ہاتھ ملایا، نہ ہی فائنل سے قبل بھارتی کپتان نے پاکستانی کپتان کے ساتھ تصویر بنوائی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو کرارا جواب دیا۔ صدر اے سی سی محسن نقوی نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں بھارتی قیادت کی جانب سے جنگ کو کھیل سے جوڑنا مایوسی کی علامت قرار دیا۔ محسن نقوی نے لکھا کہ ایسا کرنا کھیل کے اصل روح کے مجروح کرتا ہے۔ محسن نقوی نے مودی کے بیان پر عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر جنگ تمہارے فخر کا پیمانہ ہے تو تاریخ میں بھارت کو پاکستان کے ہاتھوں رسوائی اور شکست ہی ملی ہے اور کسی کرکٹ میچ کے نتیجے سے یہ حقیقت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ ایشیا کپ کی تقریب فاتح ٹیم کو ٹرافی دیے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ انتظامیہ ٹرافی اپنے ساتھ لے گئے، بھارتی ٹیم کھڑی انتظار کرتی رہ گئی، لیکن ٹرافی بھارتی کرکٹ ٹیم کو نہیں دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے اب بھارتی ٹیم کو ٹرافی ملنے کا امکان نہیں۔ ایشیا کپ کی انتظامیہ ٹرافی اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے علاوہ بھارتی ٹیم کو نہ تو میڈلز ملے، نہ ہی چیمپئن کا بورڈ دیا گیا، جس کے باعث بھارتی ٹیم نے ٹرافی اور چیمپئن کے بورڈ کے بغیر ہی تصویر بنوائی۔ دوسری جانب بھارتی ٹیم اب تک گراؤنڈ میں موجود ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ٹرافی لے کر جائیں گے، جبکہ اسٹیڈیم کی لائٹس بھی بجھا دی گئی۔ بھارت کی جانب سے کھیل میں سیاست کو گھسیٹنے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کرکٹ کے کلچر اور اسپرٹ کو تباہ کر کے مودی اپنی سیاست بچانے کے لیے برصغیر میں امن، امکانات اور مسائل کے حل کے لیے چانسز ختم کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا عزت اس طرح بحال نہیں ہوتی۔ پاک بھارت جنگ کا سکور 6-0 پتھر پر کندہ ہو گیا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، مودی بھارت اور دنیا دونوں میں خوار ہو گیا۔ ایشیا کپ کے فائنل اور تاریخی ٹاکرے میں بھارت نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر نویں بار ایشیا کپ اپنے نام کر لیا۔ دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دلچسپ میچ میں بھارت نے پاکستان کا 147 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر 2 گیندیں قبل ہی حاصل کر لیا۔ بھارت کے مڈل آرڈر بیٹر تلک ورما نے ذمہ دارانہ 69 رنز ناٹ آؤٹ کی اننگ کھیل کر ٹیم کو ایشین چیمپئن بنوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ شیوم دوبے نے 33، سنجو سیمسن نے 24 رنز کی اننگ کھیل کر بھارتی ٹیم کے لیے جیت کی راہ ہموار کی۔ اوپنر بیٹر ابھیشیک شرما 5، شبھمن گل اور کپتان سوریہ کمار یادو
लिहाजा 1-1 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान की जानिब से फ़हीम अशरफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत की जानिब से खेल को सियासत से दाखिल करने पर सिफारती हुकाम ने अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज़ तरमिज़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर 2 टूक पैगाम में कहा, भारत ने एक बार फिर खेल और खुद का मजाक बनाया। मई 2025 में भारत 6 तैयारे और 4 राफेल्स खो बैठा था। फैसल नियाज़ तरमिज़ी ने अपने ट्वीट में लिखा, कायद आज़म ने हिंदुत्व ज़हनियत को बहुत पहले पहचान लिया था। नाज़िज़म फैशिज़म की बुनियाद पर इस्लाम से नफरत आज भी जारी है। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ एशिया कप के फाइनल की पूरी फीस रवा बरस 7 मई में भारत की जानिब से किए जाने वाले हमले में शहीद होने वाले शहरियों के नाम कर दी। टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर जुर्माना भी हुआ, लेकिन उन्होंने फाइनल मैच के बाद एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया वो एशिया कप में खेले गए अपने तमाम मैचेस की फीस भारतीय फौज को देने का ऐलान करते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया गया जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल की तमाम फीस 7 मई को होने वाले हमले में शहीद होने वाले बच्चों और आम शहरियों के नाम करती है। हमारी दुआएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं। मुल्क भर के अवाम के लिए एक और महंगाई का झटका। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ऑयल इंडस्ट्रीज राय के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है, जिसके तहत पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 48 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। मिट्टी के तेल की कीमत में सबसे ज़्यादा 4 रुपये 65 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्किल, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपया 76 पैसे फी लीटर बढ़ने का इम्कान। ओगरा की जानिब से तैयार करदा वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन के जरिए वजारत खजाना को इरसाल की जाएगी और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान कल किया जाएगा। 15 रोज़ कबल हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी थी, ताहम हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोकने के खिलाफ दायर अपील पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज काम से रोकने का हुक्म जारी किया था। डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी करते हुए जस्टिस तारिक जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोका, जिसके खिलाफ जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सिंध हाई कोर्ट में नेपरा की जानिब से कि इलेक्ट्रिक को पुराने वाजिबात की वसूली की इजाज़त के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। MQM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की दरख्वास्त पर अदालत ने वकील ख्वाजा इजहारुल हसन से आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में MQM के वकील ख्वाजा इजहारुल हसन जो है वो पेश हुए हैं। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नेपरा ने अपील के बावजूद इन्हें नोटिस नहीं किया है। अदालत ने जमात दिए हैं कि अपील के लिए अपील ट्रिब्यूनल जो है वो मौजूद हैं, फिर भी हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर की जा सकती है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक नेपरा के इलेक्ट्रिक को 2017 से 23 तक के जो बिजली चोरी और दीगर वाजिबात की वसूली की इजाज़त दी है, जिसका बोझ जो है बाकायदगी से बिल देने वाले सार्फिन पर डाला जा रहा है। और दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत की माली मुआवनत के बावजूद के इलेक्ट्रिक की नाअहली और बदइंतज़ामी का बोझ अवाम पर डालना गैर कानूनी है। अदालत ने जो है दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से वकला से 7 अक्टूबर तक दलाइल तलब करते हुए समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया है। बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का कहना है कई दीगर ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करना चाहते हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू में इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने मार के हक़ में अपने आप को दिफाई तौर पर साबित कर दिया, अब मौशी ताकत बनने का वक्त है। उन्होंने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के मुआहदे में दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। किसी मुल्क को इस मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बल्कि कई दीगर ममालिक भी पाकिस्तान के साथ इस तरह के मुआहदे करना चाहते हैं। याद रहे कि 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुकूमत रियाज में बाहमी दिफाई मुआहदा हुआ, जिसके तहत किसी भी एक मुल्क के खिलाफ जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसरुल्लाह बलोच ने अलीमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने अदम हाजिरी पर अलीमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म देते हुए केस की मज़ीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। याद रहे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोल्डरा में मुकदमा दर्ज है।
और यहाँ आपको बताया कि दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी के बहाव में 25,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद पानी का बहाव कम होकर 3,87,000 क्यूसेक पर आ गया। हुकाम ने बताया कि कोटरी बैराज पर पानी की कमी के बावजूद दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। जाम शोरों में कोटरी बैराज से मुल्का कच्चे के इलाकों में सैलाबी पानी ने मुतादिद देहात अपनी लपेट में ले रखे हैं और मुसलसल सैलाबी पानी जमा रहने से मुख्तलिफ अमराज भी फूट पड़े। तो दूसरी जानिब मुल्तान की तहसील जलालपुर के नौराजा भट्टा बंद की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई। सैलाब से बंद में पड़ने वाला 1250 फुट तवील शकाफ पुर कर लिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक नौराजा भट्टा बंद को 3450 फुट तक मजबूत हिफाजती बंद में बदल दिया गया। मोटरवे साइड पर हाफिज वाला में 23,000 फुट डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रैक और चौथी नहर पर पड़ने वाले 283 फुट शगाफ की तामीर और मुरम्मत भी कर ली गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वज़ीर आब्बासी पूरी टीम को शाबाश दी। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में दरिया रावी के सैलाबी रेले को 1 माह गुजर चुका, ताहम 2 दर्जन से ज़ायद देहात में जिंदगी अब तक मामूल में नहीं आ सकी। उधर सैलाब से मुतासर M5 मोटरवे 17वें रोज़ भी बंद है। हुकाम के मुताबिक मोटरवे की बहाली का इन्हिसार अतराफ में पानी की सतह कम होने पर है। कराची पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते शहर भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। एडिशनल IG कराची जावेद आलम मोजू के अहकामात पर गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस और डाकुओं के दरमियान 21 मुकाबले हुए, जिनमें 4 डाकू हलाक, मुतादिद गिरफ्तार हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ीशान मलिक की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता हफ्ते में शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले पुलिस मुकाबलों के दौरान 4 डाकू हलाक जबकि 34 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। पुलिस की जानिब से मुलजमान से 31 गैर कानूनी असला, 17 मोटरसाइकिलें और लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद की गईं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन में मजमूई तौर पर 697 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें डाकू, चोर और मंशियात फरोश शामिल हैं। तर्जुमान कराची पुलिस का कहना है कि जराइम के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएंगी। कैमरा टीम के साथ ईशान मलिक, NTN न्यूज़, कराची। और शहर कराची में पुलिस ने मुकाबले के दौरान 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। हसास इदारे की कार्रवाई में मारूफ समाजी रहनुमा से भत्ता तलब करने वाले गिरोह के कारिंदे को भी गिरफ्तार कर लिया। मोमनाबाद पुलिस ने मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। जुनैद फिरोज की रिपोर्ट देखते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जराइम पेशानार के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कायदाबाद थाने की हदूद रेडी कोर्ट के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुवक्किल डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल्ला के कब्जे से असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। औरंगी टाउन पुलिस ने कार्रवाई के दौरान स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम इनायतुल्ला को गिरफ्तार करके असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। उधर पाकिस्तान बाजार पुलिस ने खुफिया तला पर कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम के वारदात में मुलविस 2 मुलजिमान आहद शेख और कलीमुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान आदि जराइम पेशा है जो इससे कबल गिरफ्तार हो चुके हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मारूफ समाजी कारकुन से 14 करोड़ रुपए माहाना और 1 अरब 68 करोड़ रुपए सालाना भत्ता तलब करने वाले बदनाम जमाना ब्लैकमेलर गुरु को हसास इदारों ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक हसास इदारों ने मली जाफर तैयार सोसाइटी में छापा मारकर 3 से 4 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए नमालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। जराये के मुताबिक ये इंटरनेशनल ब्लैकमेलर गुरु गुज़िश्ता 40 सालों से सरगर्म है और इस दौरान बड़े बिजनेसमैन, बिल्डर, सियासी और समाजी रहनुमा और दीगर कारोबारी शख्सियत से भारी भत्ता वसूल करता रहा है। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। मोमिनाबाद पुलिस ने ईरानी कैंप और अतराफ में जराइम पेशा नासिर की मौजूदगी की इतला पर सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके के दाखिल खारिजी रास्तों की नाकाबंदी करके घर घर तलाशी भी ली। पुलिस ने मुताद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज़, कराची। सिंध हुकूमत का बड़ा कदम, सूबे के 2000 प्राइमरी स्कूल एलिमेंट्री में अपग्रेड कर दिए गए हैं। फैसले से खासतौर पर लड़कियों को करीबी स्कूल में तालीम जारी रखने की सहूलत मिलेगी, जबकि पहले मरहले में 2000 स्कूल अपग्रेड होने के बाद बाकी भी मरहलावार अपग्रेड किए जाएंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ताहा मलिक से। जी ताहा। जी बिल्कुल, देखें, सिंध स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। सूबे भर में 2000 प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक जो है हैदराबाद डिवीजन में 496, शहीद बेनज़ीराबाद में 406 स्कूल अपग्रेड होंगे, जबकि मीरपुर खास में 244, सक्कर में 341, कराची में 56 और लाड़काना में 490 स्कूल जो है वो अपग्रेड किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने जो है वो 10,000 स्कूल अपग्रेड करने का मंसूबा बनाया था, जिसके तहत अभी जो है वो पहले मरहले में 2000 स्कूल जो है वो अपग्रेड किए जा रहे हैं। मंसूबे के तहत जो है बाकी स्कूल भी मरहलावार जो है वो अपग्रेड होंगे। फैसले के बाद स्कूल के जो हेड मास्टर्स हैं उनको भी फंड इस्तेमाल करने का इख्तियार दे दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी बहरी बरादरी का जिम्मेदार रुकन बनकर उभर रहा है। आलमी यौम बहरी तिजारत 2025 के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में सदर मुमलिकत का कहना था, पाकिस्तान का बहरी शोबा कौमी तिजारत और मुआशी इस्तेहकाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान का बहरी मुस्तकबिल रोशन और पायदार है। बंदरगाहों की तरक्की, डिजिटलाइजेशन, जदतकारी हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि कराची और पोर्ट कासिम की अपग्रेडेशन जारी है और इन्हें इलाकाई तिजारती मराकज़ में बदलने के लिए हुकूमत पुरअज़म है। बहरी पॉलिसियों में भी इस्लाहात जारी हैं और कौमी शिपिंग को आलमी सतह पर मुसाबकती बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी शिपिंग कंपनियों के लिए मराद गैर मुल्की निसार में कमी का बाइस बनेंगी। फ्रीट सिक्योरिटी में बेहतरी और ज़र मुबादला की बचत के लिए अहम इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान सिंगल विंडो के तहत पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम का मरहलावार नफाज जारी है। सदर मुमलिकत ने कहा, बंदरगाही ऑपरेशंस की डिजिटलाइजेशन से पूरा सप्लाई चेन मजबूत होगा। आलमी मयार के मुताबिक इस्लाहात कौमी मफादात और इलाकाई इंज़माम के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान आलमी बहरी बरादरी का जिम्मेदार रुकन बनकर उभर रहा है। बहरी शोबे में यकजहती, आला कारकर्दगी के जरिए पायदार तरक्की का अज़म रखते हैं। बेहतर पॉलिसी और मेहनत से मजबूत बहरी मुस्तकबिल की तामीर मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गज़ा मनसूबे की तजवीज़ पर इसराइल और अरब रहनुमाओं से बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल मिला। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था, तमाम लोग मुआहदा करना चाहते हैं। नेतन्याहू से मुलाकात में मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया, तजवीज़ का मकसद सिर्फ गज़ा में नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ती में वसी आम तक पहुँचना है। अमरीकी सदर ने कहा, तमाम फरीक पहली बार किसी ख़ास मकसद के मुत्तहिद हैं। पहली बार कुछ ख़ास होने जा रहा है। उनका कहना था, ये मुआहदा ज़रूर मुकम्मल किया जाएगा और हम ये करके दिखाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आज व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुलाकात का मकसद जंगबंदी मुआहदे का फ्रेमवर्क तय करना है। दूसरी जानिब नायब अमरीकी सदर डी जे वेंस ने बताया कि अमरीकी हुकाम और इसराइली और अरब रहनुमाओं के साथ इंतहाई पेचीदा मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। याद रहे कि अमरीकी सदर ट्रंप ने 2 रोज़ कबल भी गज़ा जंगबंदी या यरग़मालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द होने का दावा किया। अमरीकी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वो गज़ा जंग के खात्मे और यरग़मालियों की रिहाई के लिए एक मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास का कहना है कि गज़ा शहर में इसराइली हमलों के बाद 2 यरग़मालियों से राब्ता मुनक़ता हो गया। मज़ामती तंजीम ने मुतालबा किया है शुमाली गज़ा में इसराइली फ़िज़ाई हमले 24 घंटों के लिए रोके जाएँ ताकि यरग़मालियों को ख़तरे से निकाला जा सके। हमास का कहना है कि यरग़मालियों से राब्ता मुनक़ता होना इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों और शदीद बमबारी का नतीजा है। दूसरी जानिब गज़ा पर इसराइली फ़ौज के हमले जारी हैं। इसराइली फ़ौज ने नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ताज़ा हमलों में मज़ीद 41 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में 2.5 माह का बच्चा भूख और इलाज न मिलने के बायस दम तोड़ गया। फ़लस्तीनी हुकाम ने बताया, इसराइली फ़ौज गज़ा में रिहायशी मकानात और इमारतों को निशाना बना रही है, जिसके बायस तिब्बी टीमों के लिए ज़ख्मियों तक पहुँचना और मलबे तले दबे अफराद को निकालना इंतहाई मुश्किल हो गया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक गज़ा में इसराइली हमलों के बायस 66,000 अफराद शहीद और 1,68,162 ज़ख्मी हो चुके हैं। और महकमे मौसमियात ने शहर कायद में कल हल्की मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% है। इस हवाले से मज़ीद तफसील हासिल करेंगे नुमाइंदा NTN न्यूज़ जुनेद फिरोज से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शहर कायद में आज मौसम शदीद गर्म है और हफ्स की कैफियत महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% है। आज कम से कम दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त शहर में 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मशरक़ से हवाएं चल रही हैं। कल से कराची में गर्मी तो होगी, मगर शाम के औकात में बारिश का इम्कान है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होगी, जिससे मौसम कुछ हद तक खुशगवार हो सकता है। महकमा मौसमियात का मज़ीद कहना है कि कल से जुम्मे के दरमियान वक्फे शहर में हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है, जिससे गर्मी की शिद्दत कदरे जो है वो कम होगी और दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी। अंदरून सिंध की अगर बात की जाए तो अंदरून सिंध में भी शदीद गर्मी का राज ताहाल बरकरार है। शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, सक्खर, नवाबशाह, दादू, हैदराबाद में जो है वो गर्मी
बदस्तूर बरकरार है। महकमा मौसम का कहना है कि अंदरूनी सिंध में इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% बताया जा रहा है। महकमा मौसम का कहना है कि कल से अंदरूनी सिंध में भी हल्की और तेज़ बारिशों का इम्कान है, जिससे मौसम मज़ीद खुशगवार हो सकता है। जी बुलेटिन से फिलहाल मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।